माई बाप हो गया। कौन है? आवाज आ रही है? म्यूट कर दूं? Okay, how are you all? Tea break is over. फटाफट आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। द सेकंड। गुड मॉर्निंग विश्वजीत, हाउ आर यू? अभी अभी उठे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। केमन आছেন, की खबर? ओके, सो जल्दी से आ जाइए। चाय चाय चाय। हाय फैज खान, हाय, हाउ आर यू? चाय का ब्रेक खत्म, चाय कॉफी ले ली। गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग। So, how was the first session? I hope you all understood what was there in the. Yuvraj, good evening, good evening, good evening, Sarji, good evening, good evening. मेटाफर मतलब, ओके विश्वजीत, मेटाफर का मतलब होता है बेटा, इट इज अ पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंपेयर। ठीक है, पोएटिक डिवाइस होती है कंपैरिजन करने के लिए, जब हम एज या लाइक वर्ड यूज नहीं करते हैं। ओके, सो मेटाफर में क्या होता है कि हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं बिना एज या लाइक वर्ड के। फॉर एग्जाम्पल, द किंग वॉज अ लायन, विच मीन्स द किंग वॉज एज फिरोशियस, एज डोमिनेंट, एज फियरलेस, एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन। ठीक है, जब मैं कहता हूं कि वो राजा शेर था, मतलब शेर था, मतलब ये थोड़ी पूर्णमासी की रात को शेर बन जाता था, राइट? वेयरवॉल्फ वाला कोई चक्कर नहीं। यहां हमने ये नहीं कहा कि वो शेर के समान, शेर के जैसा, शेर जैसा, है ना, ऐसा यूज नहीं किया हमने, डायरेक्टली कह दिया वो शेर था, यानी कि he was a lion, which means we are attributing the powerful qualities of the lion to the king without using the words as or like. Is that clear? All right, good evening everyone, good evening, good evening, good evening. Chalo, let's begin with the second poem, second poetry. Actually, it is the third in the book, but we will do it first. Okay, it's included in your first term syllabus. Keeping quiet. All right, now what is the need to keep quiet? All right, you can see introspection. This picture here, it shows introspection. I'm looking at myself, right? Do I actually need to introspect? Why do we actually need to introspect? What is the need to actually introspect? Okay, the need to introspect arises because we are running heedlessly in a mad race which is taking us nowhere. Okay, we land in a no man's land. Ultimately we meet our end. We leave behind every materialistic achievement that we have gained so far, and there is nothing that we take along with ourselves. Okay, so why this rush, why this race, why this भेड़ चाल sort of a thing? क्यों आखिर, right? क्यों, किस लिए, क्यों भागे जा रहे हैं? हेल्थ खराब हो रही है, रिलेशंस खराब हो रहे हैं, दोस्त छूट रहे हैं, रिश्तेदार छूट रहे हैं, फिर भी हम भागे जा रहे हैं मटीरियलिस्टिक गेन के लिए। क्यों? हम नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रकृति को, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने आप को, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं दूसरों को, और फिर भी भागे जा रहे हैं, राइट? So why is this need to introspect? So keeping quiet gives us the answer. Okay, this poem gives us the answer. Why do we need to keep quiet? There are so many things that we need to discuss. We will be discussing about introspection and self-assessment. हम क्या हैं, कौन है, कहाँ खड़े हैं इस लाइफ की रेस में, right? We need to understand that. The poem talks about universal brotherhood, peace, acceptance of all humans as one. ये यूनिटी जरूरी है। हमारी चमड़ी के नीचे जो शरीर है वो सबका एक है, राइट? सबके कान हैं, सबकी आंखें हैं, सबका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही काम करता है, सबके किडनीज वैसे काम करती हैं, हार्ट वैसे ही काम करता है, सबके खून का रंग लाल है। देन व्हाई दिस डिफरेंस? व्हाई आर वी नॉट एक्सेप्टिंग one set of human beings as a part of the entire mainstream humanity? Why is it so, right? And this poem also asks us
urgently asks us to say a big no to language barriers. We speak different languages. There are so many dialects, there are so many languages, right, vernaculars, and that is actually creating a barrier. We differentiate, each other. We discriminate each other on the basis of language, okay? We hate each other on the basis of language, on the basis of the color of our skin, on the basis of the amount of bank balances that we have. So a big no to language barriers, hatred, exploitation, violence, any sort of violence, right? Whether it is domestic, whether it is, on the borders, right? Whether it is one community against another community, any violence and exploitation, right? Discrimination, okay? So these are actually the bottlenecks. These are actually the impediments in the path of progress. As a nation, as human beings, we have to say a big no to them. External inactivity is what is required. Poet कहते हैं externally आप जितना active हो वो थोड़ा सा बंद करो, थोड़ा सा रोको, कुछ समय के लिए थम जाओ, सांस लो, चिल करो, राइट? अपनी अंतरात्मा में झांको. इनर पीस इन क्रिएशन. वो क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है क्योंकि हम सिंगल माइंडेड होकर भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं पैसे के पीछे, मटीरियलिस्टिक गेन के पीछे, अपना नाम रुतबा कमाने के पीछे, और रुक के सोच नहीं रहे हैं कि हमारे अंदर के जो न्यू थॉट्स हैं, राइट, वो तो पैदा होने ही बंद हो गए हैं. हम अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं. फॉरगेट अबाउट द अदर्स, राइट? वी डू नॉट हैव टाइम फॉर इनर पीस एंड क्रिएशन. सोल सर्चिंग नहीं कर पा रहे हैं, राइट? एंड वी नीड टू रिफ्लेक्ट, वी नीड टू पॉन्डर यानी डीप थॉट किसी चीज के बारे में, राइट? यू नीड टू थिंक अबाउट where are we heading towards, right? It's a heedless race that we are running, and we have been running for long, but what do we gain in the end? Nothing. Okay, so we need to create new thoughts. We need a new life within ourselves, first within ourselves and then externally. Okay, and then finally we also will be talking about the sadness that is slowly creeping into our lives. हमें है ना, ये लाइफ हमारी जो है ना वो सैड होती जा रही है ना? क्यों? हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, हम दूसरों को नहीं समझ पा रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो गए हैं और पर्सनल लाइफ में इतने इनएक्टिव हो गए हैं. दोस्त जो हैं वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे हमारे ज्यादा हैं, लेकिन फिजिकली हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, है ना? बैठ के, है ना, दो है ना मीठे बोल नहीं बोल पा रहे हैं. सो वी नीड टू एक्चुअली बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस सैडनेस, right? We are failing to understand ourselves and this is threatening us, है ना? हम actually threatened होते जा रहे हैं. हमें ये warning मिलती जा रही है कि हम मरने वाले हैं, right? मौत करीब आती जा रही है, इसलिए भागो और हासिल कर लो जितना कुछ कर सकते हो. लेकिन उसके लिए खुद को समझना भी जरूरी है, खुद को परखना भी जरूरी है. ये सारे मैटर्स, ये सारे सवाल जवाब, ये सारे, है ना, जो हमारे मन में जो चिंताएं हैं, ये सारी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, राइट? वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस. लेट्स लुक एट वेरी क्विकली, लेट्स लुक एट द पोएट Pablo Neruda. Actually his name is not Pablo Neruda, it is his pen name. Popularly वो Pablo Neruda के नाम से जाने जाते थे. He was born on 12 July 1904 and he met with his demise in the year 1973. Okay, चिली में इनका जन्म हुआ था as Ricardo E. Basualdo, right? और चिली is a South American country. और स्पेनिश में इसे चिले कहते हैं, whereas ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में इसको चिली कहते हैं, राइट? ही वाज बेटर नोन एज Pablo Neruda, हिज पेन नेम. एंड देन 1971 में, राइट, इनकी मृत्यु हुई 1973 में. उससे 2 साल पहले इनको थैंकफुली नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर का वो इनको दिया गया. इनको उस कविटस अवार्ड से इनको नवाजा गया. He was, a poet, a diplomat and a politician. And इनका जो मेजर वर्क था, नोटवर्दी जो इनका काम था, बेसिकली ये किन चीज़ों पे लिखते थे, बहुत अलग अलग टॉपिक्स थे. एक बहुत बड़ा गैमेट था इनका, है ना, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखते थे. पोएम्स थी इनकी, हिस्टोरिकल एपिक्स थी, लव पोएम्स थी, और इनफैक्ट 1924 में इनका एक कलेक्शन था लव रोमांटिक पोएम्स का, राइट? सो विच वाज 20 love poems and a song of despair. 1924 में ये पब्लिश भी हुआ था, राइट?
let's very quickly look at the theme of the poem that we are doing right now. Okay, so theme basically क्या है, ये कबूतर, right? White pigeon is a symbol of peace. ठीक है, इससे वो सलमान खान की मूवी याद आती है ना, कबूतर जा जा जा। बेटा अभी रोमांस के बारे में नहीं सोचना है, अभी सोचना है यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में, जो ये पोएट्री हमें सिखा रही है। पीस, डिसआर्मामेंट। हम इतना ज्यादा है ना आर्म्स एंड एम्युनिशंस पे स्पेंड करने लगे हैं कि भूल चुके हैं कि उसके बियॉन्ड भी दुनिया है। सरहद के ठीक दूसरी तरफ खड़ा इंसान भी हमारी तरह इंसान है, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पिता है ना। लेकिन हम एक सेकंड नहीं लगाते हैं सरहद के इस पार से उस पार गोली चलाते वक्त। वी नेवर थिंक ऑफ the other person, right? And so does the other person, वो भी नहीं सोचता है, right? पाकिस्तान और इंडिया, right? एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि इस दुश्मनी का है ना कोई अल्टीमेट कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। विक्टोरियस हम कहते तो हैं एक किसी एक कंट्री को, लेकिन अल्टीमेटली लाशों के ढेर पे चढ़ के विक्ट्री जो हासिल हुई है, that is not so cherishing. Okay, so disarmament के बारे में बात करती है। यहाँ है ना हमारे कोरियन प्रेसिडेंट कहते हैं कि मेरे पास वो एटॉमिक बॉम्ब का बटन है, और वहाँ हमारे है ना फॉर्मर अमेरिकन जो हमारे ट्रम्प साहब थे वो कहते हैं मेरे पास भी बटन है और चलाना जानता हूँ। सो ये आर्म्स एंड एम्युनिशंस की धौंस, ये धमकी किस लिए आखिर, राइट? क्या हासिल होगा हमें? कुछ भी नहीं, राइट? वी नीड टू कीप क्वाइट, वी नीड टू इंडल्ज इन डीप इंट्रोस्पेक्शन एंड मेडिटेशन, राइट? मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है यार हम संन्यास ले लें। मेडिटेशन किस लिए? ताकि हम ये सोच सके हमारे अंदर जो मन की गंदगी है, हाउ कैन वी टेक इट आउट, हाउ कैन वी गेट रिड of the inner dirt that is accumulating every single day in our lives. We need to introspect. Okay, we need to cease, stop killing off innocent animals, trees and other human beings. Now this word cease means, cease का मतलब क्या है? To stop. Cease means to stop. Okay, we need to avoid doing it. We need to avoid killing others. They are harmless, right? Animals are harmless. किसी एक जानवर को देखा है दूसरे जानवर को शिकार करने के लिए, for the enjoyment of hunting, है ना, वो उसको मार डालता है? कभी नहीं। जब भूख लगती है किसी एक जानवर को तो ही वो दूसरे जानवर का शिकार करता है। इसलिए नहीं कि है ना कोई शेर किसी हिरण का शिकार इसलिए नहीं करता कि उसकी खाल अपनी ही गुफा में टंगाएगा, है ना, उसका सिर है ना गुफा में लगाएगा। नेवर। A lion hunts only when it is hungry, right? So there is a purpose that nature has given it. Okay, and we need to stop destroying the environment with the destructive annihilating fire that is being created with the help of the ammunition, the arms यानी यहाँ पे arms नहीं, बंदूकें, right? गोलियां, बारूद, है ना, bombs. एंड इससे क्या होगा? हम अपने आप को हील कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू हील आवरसेल्व्स। हम एनवायरनमेंट को हील होने का टाइम दे पाएंगे, हम अपने जख्मी हाथों को देख पाएंगे, हम अपने मन में जो चीजें चुभ रही हैं, है ना, उनको, है ना, उस चुभन को हम समझ पाएंगे और उसको शायद हील कर पाएंगे, राइट? और ये सब तब होता है जब हम बाहर से हो हल्ला करना, chaos क्रिएट करना बंद कर देते हैं, एंड वी स्टार्ट स्प्रेडिंग लव एंड यूनिटी, not hatred. We shouldn't be greedy, right? We shouldn't have that lust to acquire every mortal thing that can be. Let's look at the summary, right? ये poem पिछली poem से थोड़ी सी बड़ी है. We will be, going through each and every stanza, right? So basically it talks about, the poet urges peace, love, humanity, universal brotherhood. एक इंसान दूसरे इंसान को पराया समझने लग गया है सिर्फ इसलिए कि वो दूसरी कंट्री में रहता है, दूसरे शहर में रहता है, दूसरी भाषा बोलता है। हमें ये यूनिवर्सली हटाना पड़ेगा भेदभाव, राइट? एंड the poet also gives us a message कि composed and serene actions can lead to ultimate peace, universal peace and harmony, right? ये जो serene word है इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब हुआ काम, राइट, शांत। तो ये शांति कब आएगी? जब हम कंपोज होंगे, जब हम शांत दिमाग से सोचेंगे। होता है ना कि मेरे सामने कोई चीज पड़ी है लेकिन मेरा दिमाग इतना एजिटेटेड है कि मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मम्मी को बोला, मम्मी यार दिख नहीं रही है वो चीज, कहां रख दी आपने? और मम्मी जो बिल्कुल शांत और समझदार है, वो आके हमारा कान मरोड़ के कहती है, ये तेरे सामने पड़ी है, नहीं दिखाई दिया? तब हमें रियलाइज होता है कि हमारा दिमाग एजिटेटेड था, इसीलिए सामने पड़ी चीज नहीं दिखाई दी। तो सोचो, वर्ल्ड पीस तो इतना बड़ा मुद्दा है, हम एजिटेटेड होके, राइट, इंपल्सिव होके कभी वर्ल्ड पीस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम कभी हार्मनी, ब्रदरहुड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, एनिमेटेड फिल्म थी कंग फू पांडा, राइट। कंग फू पांडा में एक छोटा सा वो क्रीचर होता है, मास्टर शिफू, राइट। एक पैंडा होता है जिसको वो लोग, है ना, ड्रैगन वॉरियर बना देते हैं। और उस मास्टर शिफू का एक मास्टर होता है टर्टल, उगवे, राइट। तो जब उस फिल्म में जो एंटागोनिस्ट है, यानी कि जो विलन है टाइलंग, वो एक लेपर्ड होता है, वो हमला करता है, तो शिफू भागे भागे अपने टीचर के पास जाता है और बोलता है कि मास्टर उगवे, टाइलंग इज ऑन हिज वे टू डिस्ट्रॉय द पीस वैली, राइट। तो वो जो टर्टल होता है वो बड़ा शांत दिमाग का होता है, कहता है when your mind is agitated you cannot see through, you cannot look for the answer, but if you let it settle down, right, the answer becomes clear. Beautiful film, very motivational, right? When you have time, must watch. Okay, there are so many lives, so many lessons of life, right, life in that movie. Okay, तो दिमाग जब तक एजिटेटेड रहेगा, जब तक दिमाग भागता रहेगा, तब तक हम सोच नहीं पाएंगे कि हम करें क्या, राइट। हमें वो सोल्यूशन नहीं दिखाई देगा। एंड that is why we need to be composed, we need to be calm and cool in temperament. Keeping quiet will lead us to stop using any language. और language जब हम बोलना बंद कर देंगे तो सर कम्युनिकेट कैसे करेंगे? यही तो साइलेंस का कम्युनिकेशन है ना, पीसफुल कम्युनिकेशन, वो बताना चाहते हैं पोएट। हमें उस चीज में विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिना लैंग्वेज के भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो यूनिवर्सल भाषा होगी silence. Okay, so why stop talking in any language? Because it creates linguistic barriers. भाषा के आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भाषा के आधार पे हम एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, भाषा के आधार पे हम बंट जाते हैं। We are divided because we speak different dialects, different languages. We have so many languages, right, in one country, in one state, in one city itself, right? We need to stop it. The period of inactivity will give us time, and it will give us time to do what? It will give us time to assess ourselves and to heal our wounds we all have given to all living beings, including ourselves. हमने खुद को कितना जख्मी कर रखा है, हमने खुद को कितना समय देना बंद कर दिया है। हम सिर्फ भागे जा रहे हैं यार, कहां जाके रुकेंगे? मृत्यु की गोद में, है ना। We will finally land up in the lap of death, right? And then nothing we are going to take with us, right? हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे। Very recent case, right? Siddharth Shukla. So he was so famous. He was so, you know, sought after. He was such a sought after actor on, you know, from the television world, right? और बिग बॉस जीतने के बाद वो और फेमस हो गए थे, राइट। क्या नहीं था उनके पास? ही वाज सो वेल बिल्ट, राइट। ही हैड एवरीथिंग एट हिज डिस्पोजल, राइट। पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ। एंड ही लेफ्ट विदाउट एनी साइन दैट ही वाज गोइंग टू बिड अड्यू टू एवरीवन, राइट। क्या अल्टीमेटली क्या उन्होंने हासिल किया? कुछ भी नहीं लेके जा सके। So this is what the poet is trying to make us understand. Okay, now there is a great urge, right? There is a great urge to stop creating, producing more arms. ये बंदूकें, गोली, बारूद किस लिए? क्या हासिल करेंगे हम? कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली, है ना, मैंने किसी को मारा, किसी ने मुझे मार दिया, खत्म हो गई ना। क्या मैं जिंदा बचूंगा उस विक्ट्री को, उस स्वीट विक्ट्री को चेरिश करने के लिए? नो, I will be no more in the world to enjoy the victory, to enjoy the peace, to enjoy the harmony, to enjoy the beauty of life that God has sent me to enjoy on this earth, right? My purpose of living, my purpose of life
will not be fulfilled, right? So there is a great urge to stop creating wars with fire of arms and ammunitions and let the earth and humanity heal for some time, at least some time, right? And life should always keep moving ahead. पोएट हमें कहते हैं हमें इनएक्टिव होना पड़ेगा, राइट? यहाँ कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा कि हमें एक्टिव होना पड़ेगा, वो कह रहे हैं रादर गेट इनएक्टिव, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है जिंदगी रुक जाए, राइट? उनके कहने का अर्थ है हमें ये हो हल्ला बंद करना पड़ेगा, हमें अननेसेसरी केओस जो क्रिएट कर रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा। कहीं भी वो ये गलत मैसेज नहीं दे रहे कि हमें हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट सिटिंग आइडल एंड बीइंग स्टैग्नेंट, इट इज अबाउट मूविंग अहेड एंड क्रिएटिंग न्यू बेंचमार्क्स, राइट? लेट्स लुक एट द पोएम लाइन बाय लाइन एंड एनालाइज कि क्या क्या हम इसमें सीख सकते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Let's analyze what is the poet trying to tell us. What is he trying to, convey through his lines? So now we will count to 12. This 12 has a significance. 12 का क्या significance है? 12 गिनने के लिए क्यों कह रहे हैं, right? Maybe it is, there are the number of, hours in a day, है ना? तो घड़ी में जो number of hours है वो 12 है, शायद इसलिए हमें poet 12 गिनने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? Number of hours is 12, right? Zodiac signs जो है वो भी राशि जो है वो 12 मानी जाती है, राइट? देयर आर मंथ्स जिनकी संख्या भी 12 है। सो इट इज अ कोइंसिडेंस कि पोएट इन चीजों को इंपॉर्टेंस देने के लिए, है ना, बता रहे हैं कि हमें 12 गिनना है। चलिए 12 गिनते हैं और फिर हम सब शांत, स्टिल, स्थिर, शिथिल हो जाएंगे, राइट? यहाँ पे एलिट्रेशन है, ध्यान दीजिएगा। एलिट्रेशन क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन में आसपास कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स रखे हुए हो, एक ही लाइन में, वेरी नियर टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हम कहते हैं वो क्या है? वो है एलिट्रेशन, राइट? सो WW वी विल, राइट? तो ये आसपास रखा हुआ है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यहां भी क्या है? फिर से वी विल, एलिट्रेशन है इन दो लाइनों में। एक और पोएटिक डिवाइस, रिपीटिशन कह सकते हो। हम सब वी विल, वी विल, वी विल, ये क्यों रिपीट किया जा रहा है? ये इसलिए रिपीट किया जा रहा है बिकॉज he wants to create a unity among all the people, right, residing on this earth, right? And let's not talk in any language for 1 second on this earth. Imagine everybody has stopped talking. हर इंसान बोलना बंद कर चुका है, right? हमारी आवाज, हमारी जुबान चुप हो गई है, शांत हो गई है, शिथिल हो गई है, right? And then imagine that moment. Nobody is talking to each other in any language, right? No matter whether rich or poor, whether strong or weak, anything. हम किसी भी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। Can you imagine of that day, right? Can you imagine that scenario कि बिना जुबान से एक्सप्रेस किए हम कैसे शांत होके भी, कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ बोल देंगे, बहुत कुछ समझा देंगे। क्या मोमेंट होगा वो? Unimaginably wonderful moment, right? Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second, right? And not move our arms so much. हमें इतने हाथ नहीं हिलाने चाहिए, यानी एक्सटर्नल एक्शन इतना बंद करो, है ना? वो कैओस जो क्रिएट कर रहे हैं, वो उथल पुथल जो मचा रखी है हमने, यहां हाथ मार लिया, वहां भी हाथ मार लिया, ये भी अपने काबू में कर लिया, वो भी अपने कब्जे में कर लिया, ये जो डिजायर है, रोको इसको, लगाम लगाओ इस पे। यहां पे देखो एक पोएटिक डिवाइस यूज की गई है, लेट्स एंड लेट्स, ठीक है? 2 बार यहां पे लेट्स एंड लेट्स लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? जब 2 कंसेक्यूटिव लाइनें, 2 या 2 से ज्यादा लाइनें एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही होती है तो उसे एनाफोरा कहते हैं। रेपिटेशन है बट इट इज नोन एज एनाफोरा, राइट? इट इज नोन एज एनाफोरा। लेट्स, लेटस, ये लेट्स का मतलब लेटस है, लेटस, है ना? 2 कंसेक्यूटिव लाइंस में लगातार 2 लाइनें इसी से शुरू हो रही है। कई बार एंड होता है, कई बार, है ना, वी से हो जाता है। कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड अगर 2 कंसेक्यूटिव लाइनों में एक साथ आया है, सो दैट इज, व्हाट इज दैट नोन एज? दैट इज नोन एज
एनाफोरा, ओके। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, हमें अपने हाथ इतने, है ना, इधर उधर मारने की ये जो लालसा है, ये जो लालच है, वो एक बार के लिए बंद कर देना चाहिए। रुकिए, थमिए, सोचिए अपने बारे में, रिलैक्स कीजिए, हाथों को थोड़ा आराम दीजिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। रीड केयरफुली, है ना। एक्सोटिक का मतलब क्या हुआ? समथिंग विच कम्स फ्रॉम अनदर स्पेस और कंट्री और ओरिजिन, एंड दैट इज न्यू एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है, फॉर अस, है ना। कोई नई चीज आ गई हो, है ना, कोई ऐसा मोमेंट जो हमारे लिए अनजान हो और इसीलिए इंटरेस्टिंग बन गया हो, इसीलिए एक्साइटिंग बन गया हो, उसे हम कहते हैं exotic, something which is not familiar। तो ये बड़ा exotic moment होगा, without rush, without engines, we would all be together in a strange sudden, in a sudden strangeness, right? तो हम सब एक हो जाएंगे। कहां एक हो जाएंगे हम सब? उस अलग से खास नए मोमेंट में, उस पल में जब ना तो रश होगा, भाग दौड़ होगी इतनी, है ना, बिना सोचे समझे, और न ही इंजन का साउंड होगा, चारों तरफ खामोशी, चारों तरफ शांति, है ना। इमेजिन दैट मोमेंट ऑफ अल्टीमेट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, राइट। कितना ट्रैंक्विल होगा हर जगह, कितनी सेरेनिटी होगी, कितनी शांति, सुकून। पहाड़ों पे जब जाते हैं तो वहां की जो, है ना, हवा है, वहां की जो शांति है, वो हमें क्यों अट्रैक्ट करती है, पीस देती है? क्योंकि वहां ये, है ना, किचकिच नहीं है लोगों का, है ना, लोगों की किचकिच नहीं होती वहां, लोगों की लड़ाइयां नहीं होती वहां, इतनी बातें नहीं होती हैं वहां, इंजन की आवाज नहीं, धुआं नहीं, एवरीथिंग इज सो प्योर एंड सीरीन। और वही मोमेंट क्रिएट करने के लिए, वही अलग सा मोमेंट क्रिएट करने के लिए पोएट हमें कह रहे हैं, राइट। और सोचो, उस वक्त हम सब एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के साथ ही हुए, भले ही मैं किसी और कंट्री में हूं, आप किसी और कंट्री में हो, लेकिन फिर भी हम एक साथ हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे है, प्लेटफॉर्म ऑफ serenity, platform of silence, we would all be together। यहां फिर से क्या है, देखो यहां है repetition, without, ये without 2 बार यूज किया गया है बताने के लिए। रोक दीजिए, थाम लीजिए, है ना, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। ये उस चीज रिफ्रेन करने के लिए कि आप है ना, एक बार रिलिंक्विश कर दो, एक बार आप, है ना, रिनाउंस कर दो इन चीजों को, है ना, हटा दो इन चीजों को अपनी जिंदगी से। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर, सब साथ होंगे, राइट। एलिट्रेशन है, वी वुड, WW, ये साउंड, वह साउंड फिर से, है ना, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से आया हुआ ये मोमेंट, अचानक से आई हुई ये खामोशी हमारे लिए, है ना, बड़ा सरप्राइजिंग होगा, है ना। और हम इस स्ट्रेंज मोमेंट में सब साथ होंगे, और इट वुड बी ब्लिसफुल। ब्लिसफुल क्या होता है? परम आनंद, है ना, अल्टीमेट, है ना, जॉय हमारी लाइफ में आ जाएगा जिस दिन हम ये सडन स्ट्रेंजनेस, है ना, एक्सपीरियंस करेंगे। यहां फिर क्या दिया हुआ है, देखो यहां फिर से SS, सडन स्ट्रेंजनेस, SS एलिट्रेशन है, ठीक है। तो वापस एक बार देखते हैं, 12 काउंट करके हमें, है ना, रुकने के लिए कह देते हैं, खामोश होने के लिए कह देते हैं पोएट कि रुक जाओ, किसी भाषा में बात मत करो, है ना, एक्शंस मत करो, और चुपचाप एक अलग ही मोमेंट क्रिएट करो जिसमें हम सब साथ होंगे, हम सब एक दूसरे के, है ना, साथी होंगे, हम सब एक जैसे होंगे, चुपचाप, बिना हाथों की उठापटक, बिना, है ना, दिमाग का दही बनाने वाली सोच, कुछ भी नहीं, ना इंजन्स, ना, है ना, पैसा कमाने की भागदौड़, कुछ भी नहीं, एक साथ सब लोग एंजॉय करेंगे उस मोमेंट में, राइट। लेट्स लुक एट द लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड। एनाफोरा मैंने आपको बताया था, एनाफोरा क्या होता है? जब हम यूज करते हैं when consecutive lines begin with the same word या words, let's not speak, let's not stop, है ना। so let word जो है, let us, ये बार बार रिपीट हुआ है, देखो यहां पे दिया हुआ है, let's not speak and let's not speak, let's stop, ओके। तो let word, है ना, रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं एलिट्रेशन आता है, मैंने मेंशन किया था एलिट्रेशन, पहली 2 लाइनों में एलिट्रेशन है। पहली लाइन में we will count, ठीक है, WW, और उसके बाद we will all, तो यहां भी WW वाला इफेक्ट दिखाई दे रहा है, राइट। एक्चुअली कॉन्सोनेंट साउंड जो है, बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है, और ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं और एक दूसरे के आसपास ही होते हैं, एकदम आसपास होते हैं एक ही लाइन में, उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे W साउंड जो है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे W साउंड रिपीट हो रहा है, देखो
we will, W sound is repeated, and then sudden strangeness, S साउंड को रिपीट किया गया है आखिरी लाइन में। या हमने देखा था आखिरी लाइन में sudden strangeness है ना, S वर्ड स साउंड रिपीट हो रहा है। और फिर रेपिटेशन, रेपिटेशन किसका, वर्ड विदाउट का, विच इज एम्फेसाइजिंग दैट वी शुड एब्सटेन फ्रॉम the rush in life, the engines that are honking, okay, everything, the vehicles that are producing so much of sound and so much of chaos, इन सब से हमें क्या करना है, इन सब से हमें रिनाउंस करना है, हमें रोकना है अपने आप को, ये चीजें हमें रोक देनी है। उसके बाद fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। तो फिर क्या होगा जब हम रुक जाएंगे, क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा नेचर पे, एनवायरनमेंट पे, राइट? क्या होगा कि जो नेचर को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, वो फिशरमैन जो जानवरों को मार रहे हैं इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स को मारना बंद कर देंगे एक बार के लिए, है ना, मछलियों को हम मारना बंद कर देंगे। वो फिशरमैन है ना उन समुद्रों का है ना तूफान झेल के भी मछलियों को मारने के लिए जाते हैं। सोचो अपनी जिंदगी को और अपने परिवार की जिंदगी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने का रिस्क लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जाके मार के ऐसी मछलियों को लेके आते हैं, शिकार करके लेके आते हैं, वो रुक जाएंगे, है ना, उससे उनका खुद का भी भला है और जो वेल्स है उनका भी भला होगा, वो बेचारी मरने से बच जाएंगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, इंसान जो खुद को नुकसान पहुंचाता जा रहा है, सोच ही नहीं रहा, टाइम थोड़ी होता है उस मजदूर के पास कि वो ये देखे कि मेरे हाथों में कितना जख्म लग गया है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो वो क्या करेगा, रुक जाएगा, सॉल्ट गैदर करना बंद कर देगा, एंड ही वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। एच 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 एलिट्रेशन है यहां भी, एच एच एच, हिज हर्ट हैंड्स, राइट? अपने अपने है ना जो हाथ उसके डिटीरियोरेट हो रहे हैं, चमड़ी गल रही है, उसको वो देखेगा एक मिनट के लिए रुक के। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, irony of life, right? Irony of life, victory with no survivors। survivors कौन है? वो लोग जो बचे हैं उस विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए। जब हम प्रकृति के खिलाफ है ना युद्ध छेड़ रहे हैं, ग्रीन वॉर्स किसका सिंबल है? डिफॉरेस्टेशन मान लो, है ना, पेड़ों की कटाई, पेड़ों का बर्बाद, जंगलों को जला देना, है ना, एरिया, जंगल का एरिया क्लियर कर देना अपने खुद के स्वार्थ के लिए। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद गैस क्या है? ये जो हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ये उसका सिंबल है। वॉर्स विद फायर, है ना, आर्म्स एंड एमिनिशंस, ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे है ना बम की बौछार कर देती है। तो ये जब हम करते हैं, हम एक विक्ट्री की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हमारा पर्पस है कि हम है ना कब्जे में कर लें पूरी दुनिया। कौन सी दुनिया कब्जे में करोगे भाई? होगा कौन फिर आपके साथ जश्न मनाने के लिए जब आप अपनों को ही मार डालोगे? सो द पोएट यूजेस दिस एक्सप्रेशन ब्यूटीफुली, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। क्या आयरनी है लाइफ की, क्या विडंबना है जीवन की, ऐसी जीत जिसका जश्न मनाने के लिए कोई नहीं होगा आपके साथ। हो सकता है आप खुद भी ना बचे, राइट? सो दीज आर सिंबल्स, एंड जो लोग ये कर रहे हैं, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, वो क्या करेंगे? They would all put on clean clothes, right? C alliteration याद रखिएगा, लिटरेरी डिवाइसेस में देखेंगे तो वो क्या करेंगे? क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे। क्लीन क्लोथ्स का मतलब यहाँ पे देयर विल बी अ शिफ्ट इन देयर थॉट्स। सिंबलिज्म है, देयर विल बी शिफ्ट इन देयर थॉट्स। गंदे विचारों से साफ सुथरे निर्मल विचारों से वो भर उठेंगे, गंदे विचार छोड़ देंगे। क्लीन क्लोथ्स का मतलब सफेद कपड़े यानी मतलब ऐसे विचार जिनमें मैल नहीं है। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स। ये ब्रदर्स कौन है? एनिमीज। जिनको वो एनिमीज मान रहे हैं उन्हें आप वो भाई की तरह ट्रीट करेंगे, अपने बंधु, अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने यार की तरह, जिगरी दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे, और उनके साथ इस खामोशी के मिशन पे, है ना, इस नए अभियान में निकल पड़ेंगे। बर्बादी को रोक के सृजन, क्रिएशन, है ना, करने के लिए एक साथ निकल पड़ेंगे, ब्रदरहुड फैलाएंगे। And they would walk about with their brothers in the shade doing nothing। ये शेड वर्ड जो है, ये शेड वर्ड भी यहां क्या बता रहा है? सिंबल है। शेड यानी प्रोटेक्शन, सेफ गार्डिंग। तो वो
किसकी शरण में आ जाएंगे? एक दूसरे के प्रोटेक्शन की शरण में आ जाएंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे को सेफ गार्ड करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, है ना, जानवरों को, हरियाली को, राइट, दूसरे जो इंसान है उनको, राइट, क्योंकि वहां फिर भेदभाव तो होगा ही नहीं, हर इंसान एक दूसरे को, है ना, भेदभाव की नजर से नहीं देखेगा, वो एकता की नजर से देखेगा, वो हार्मनी की, ब्रदरहुड की नजर से देखेगा। डूइंग नथिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? फिर से शांत, खामोश, बिना एक्टिविटी के, एक्सटर्नल एक्टिविटी के, ना कुछ करते हुए भी हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, हम एक नए अभियान पे निकल पड़ेंगे। और यही पर्पस, यही अर्ज कर रहे हैं पोएट हमसे कि हम ऐसा करके तो देखें। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? आई कैन नॉट सी योर मैसेजेस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, नाउ सी, लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो अपन देख लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी हैं यहां पे? लिटरेरी डिवाइसेस, सबसे पहले असोनेंस, वॉवल साउंड, हम कर चुके हैं, पिछली पोम में भी किया था हमने। असोनेंस क्या होता है? वॉवल साउंड जब बहुत बार दिखाई दे, वॉर्स विथ गैस, आई और ए साउंड, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, आई ओ ए साउंड रिपीट हो रहा है। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, तो आई ओ ए साउंड बार बार क्रिएट हो रहा है। फिर एलिट्रेशन, एच सी डब्ल्यू, ये साउंड्स बार बार, ये वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो रहे हैं। हिज हर्ट हैंड्स, हमने देखा था यहाँ पे, मैंने अंडरलाइन किया है, हिज हर्ट हैंड्स एलिट्रेशन है। क्लीन क्लोथ्स, राइट, क्लीन क्लोथ्स में, यहां भी क्लीन क्लोथ्स में है, ठीक है। फिर वॉक अबाउट विथ, ठीक है, तो देखो, फिर वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, तो डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना, यहाँ पे एलिट्रेशन हम देख सकते हैं। एंड देन रेपिटेशन ऑफ द वर्ड वॉर्स, यहाँ पे वॉर का मतलब एग्जैक्ट वो, है ना, गोला बारूद वाली लड़ाई नहीं, यहाँ पे कोल्ड वॉर भी है, यहाँ पे, है ना, प्रकृति के खिलाफ जो हम युद्ध छेड़ रखा है हमने। वी हैव एक्चुअली बीन वेजिंग वॉर अगेंस्ट एवरी सिंगल थिंग, एवरी पॉसिबल ह्यूमन बीइंग, एवरी पॉसिबल लिविंग बीइंग। हम इंसान इतने ज्यादा खुदगर्ज हो गए हैं। वी हैव वेज्ड वॉर विथ, you know, the environment, with the atmosphere, with nature, with the other fellow human beings, with animals, everybody, युद्ध छेड़ रखा है, उसको रोकना है, इसलिए यहां पे वॉर को रिपीट किया गया है। और फिर देखो सिंबलिज्म, राइट, सिंबल्स बहुत सारे यूज किए गए हैं। कौन से सिंबल्स यूज किए गए हैं? देखो यहाँ पे बहुत खूबसूरती से बताया गया है। ग्रीन वॉर्स, राइट, डिफॉरेस्टेशन के लिए यूज किया गया है। उसके बाद देखो वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद गैस यानी कि पोल्यूशन जो कर रहे हैं। क्लीन क्लोथ्स किस चीज का सिंबल है? शिफ्ट इन थॉट, चेंज इन थॉट, गंदे विचारों से अच्छे विचार, राइट, डिस्ट्रक्टिव थॉट से कंस्ट्रक्टिव थॉट्स का जो चेंज है, उसके लिए कहा गया है वी वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक इन द शेड, राइट, वॉक इन द शेड। शेड का मतलब प्रोटेक्शन, सेफ गार्डिंग, राइट, संरक्षण देंगे हम एक दूसरे को, नेचर को, जानवरों को, सबको हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि डिस्ट्रॉय करेंगे। सो डिस्ट्रक्शन का विचार हमारे दिमाग से हम निकाल के फेंक देंगे, एंड देन दैट वुड बी अ ग्रेट मोमेंट, अ डिफरेंट मोमेंट फॉर all of us, right? Now the third stanza, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about, right? देखो यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात लिखी है उन्होंने, कंफ्यूज ना हो, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं इसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, है ना, हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। पॉन्ड और रिवर में क्या फर्क होता है? दोनों में पानी होता है। फर्क यह होता है पॉन्ड का पानी स्टैग्नेंट होता है, इसीलिए उसमें काई जम जाती है, वो बदबू मारने लग जाता है। नदी का पानी बदबू नहीं मारता क्योंकि वो बहता रहता है, इट मूव्स ऑन, राइट? एंड दैट इज व्हाई, दैट इज द डिफरेंस दैट द पोएट इज ट्राइंग टू हाईलाइट इन आवर लाइफ आल्सो। वी नीड नॉट बी स्टैग्नेंट, ही डजंट वांट अस टू बी स्टैग्नेंट, ही डजंट वांट अस टू जस्ट सिट आइडल, राइट? निकम्मा बैठने के लिए, बिना किसी गतिविधि के, है ना, निकम्मा बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं, हरगिज नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब, है ना, बिल्कुल भी हम कुछ नहीं कर रहे, स्टैग्नेंट हो गए हैं, लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, रुक गई है, थम गई है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। वो जो चाहते हैं शांति, उसका मतलब ये नहीं है कि हम टोटली इनएक्टिव हो जाएं, काम करना बंद कर दें,
हमारी जिंदगी पे जंग लग जाएगी। वो चाहते हैं लाइफ शुड मूव ऑन, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड, लिविंग ऑल आवर फेलियर्स एंड सक्सेसेस बिहाइंड। हमेशा है ना, कहते हैं ना कि चलती का नाम है ना गाड़ी, यानी आगे बढ़ते रहने का नाम जिंदगी, राइट। तो he wants us to move ahead but with inner soul searching and I want no truck with death। दो मतलब है, देखो यहां पे I want no truck with death, दो मतलब है। देखो ट्रक का एक तो अर्थ व्हीकल है, दूसरा इसका अर्थ होता है, एक तो व्हीकल है राइट, और दूसरा इसका अर्थ होता है एक्सचेंज। ओके, इसका एक और अर्थ होता है एक्सचेंज। ओके, सो पोएट कहते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग इन एक्सचेंज विद डेथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें शांति दे दो, हम आपको जीवन देते हैं, है ना। मृत्यु के देवता से वो कोई सौदा नहीं करना चाहते हैं। इट इज नॉट वांट टू स्ट्राइक अ डील विद द गॉड ऑफ डेथ। डेथ से वो कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, शांत होके नए विचारों को जन्म दो, शांत होके हमेशा के लिए शांत हो जाओ, ये नहीं चाहते। और दूसरा इसका इन्फ्रेंस क्या निकल सकता है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ का, ही डज नॉट वॉन्ट अ ट्रक फुल ऑफ डेड बॉडीज। ओके, नहीं चाहते कि लाश का एक ट्रक भर के वो देखें, राइट, वो ये नहीं चाहते हैं। इसके दोनों इन्फ्रेंसेस समझ सकते हैं हम दोनों, है ना, इसके अर्थ है ना समझ सकते हैं, दोनों अर्थ हम इसके निकाल सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं मृत्यु से कोई अदला बदली नहीं करना चाहता, हमें शांति दे दो, हम आपको जीवन दे देते, नो। और वो ये भी नहीं देखना चाहते हैं, एक और अर्थ क्या निकलता है इसका, वो ये नहीं देखना चाहते हैं कि है ना ट्रकें भर भर के लाशें, हम है ना लाशों का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, लाशों के है ना जो ढेर है वो बढ़ाते जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सिंगल माइंडेड ना हो, हम नैरो माइंडेड ना हो, हम सिर्फ एक तरफा ना सोचें, हॉलिस्टिक व्यू होना चाहिए, है ना, वृहद सोच होनी चाहिए हमारी। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness। तो हमारे जीवन में एक सैडनेस आ गई है। पोएट कहते हैं हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ी सैडनेस आ गई है, ठीक है, कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और मृत्यु के डर से हम है ना हमेशा बच के भागना चाहते हैं, जबकि वो करीब आ रही है। तो अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते कि बस जिंदगी को भगाए जाओ, दौड़े जाओ, जहां तक भाग सकते हो, जो हासिल कर सकते हो बस कर लो, राइट। देखो यार, लाइफ बेसिकली इंसान क्या करता है, लाइफ के दो ही पर्पस मानता है ना। लाइफ को व्हाट ड्राइव्स अस, है ना, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या चीज प्रेरित करती है। इंसान मानता है कि वी आर ड्रिवन बाय टू फोर्सेस, है ना। क्या है वो, एन अर्ज टू सर्वाइव, और दूसरा है थ्रेट ऑफ डेथ। हमें लगता है बस यही दो फैक्टर्स हैं, हमें लगता है बस यही दो चीजें हैं, है ना, जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें मोटिवेट करती हैं कि सरवाइव करना है, बचे रहना है, भागो, हासिल करो, जितना कर सकते हो अचीव करो, उपलब्धियां बढ़ाओ। और इसलिए क्योंकि जिंदगी कब खत्म हो जाए पता नहीं। तो ये दो ही फैक्टर्स है जो हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम इतने सिंगल माइंडेड अगर ना होके, है ना, पोएट कहते हैं इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, जिंदगी को भगाने का बस एकमात्र उद्देश्य नहीं रख के अगर हम रुक जाएं कुछ क्षणों के लिए तो क्या होगा, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक सेकंड के लिए रुक जाएं, कुछ ना करें, ये दौड़ना बंद कर दे, तो शायद एक बहुत ही बड़ी एक खामोशी, गहरी खामोशी हमारे जिंदगी में आएगी, एक बहुत गहरी शांति हमारी जिंदगी में आएगी। और उससे क्या होगा, ये जो उदासी है वो हटेगी। किस चीज की उदासी, क्यों उदास है हम, है ना, जो शांति हमारे मन में आएगी उससे हम किस उदासी से छुटकारा पा सकते हैं। उदासी है अपने आप को ना समझ पाने की, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को दे नहीं पा रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, अपने आप को हील, अपने आप को उस जख्म से उबार नहीं पा रहे हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ।
तो हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं और लगातार मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस चीज से हम भयभीत होते जा रहे हैं। इन दो खतरों से, इन दो विचारों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इस सैडनेस से हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम इस मैड रश को रोक दें, थाम लें, शांत हों थोड़ी देर के लिए, राइट। और उसके बाद जो एक अलग एग्जॉटिक ब्लिसफुल मोमेंट हमारी जिंदगी में आएगा वो बहुत कुछ चेंज कर देगा। लेट्स वेरी क्विकली लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस दैट वी हैव इन दिस पार्ट ऑफ द पोएम, थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। वी हैव कॉन्सोनेंस, टी साउंड इज रिपीटेड। कहां? टोटल इनएक्टिविटी, ट ट एंड ट, टोटल इनएक्टिविटी, है ना। ट साउंड कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट, स्ट्राइक कर रहा है, दिस इज कॉन्सोनेंस। एलिट्रेशन, डब्ल्यू एन एस साउंड, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, है ना, तो एस साउंड क्रिएट हो रहा है, डब्ल्यू साउंड क्रिएट हो रहा है। एंजाम्बमेंट हमने पिछली पोम में किया था, लास्ट में मैंने बताया था एंजाम्बमेंट होता है, लिखवाया था आप लोगों को। एंजाम्बमेंट क्या होता है? एंजाम्बमेंट होता है जब एक लाइन सफिशिएंट नहीं होती है आइडिया को, है ना, पूरा एक्सप्रेस करने के लिए, तो जब दूसरी तीसरी लाइन में भी आइडिया कंटिन्यू की जाए, पोएट के द्वारा अपनी बात रखी जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंजाम्बमेंट कहते हैं। कैसे? यहां पे एग्जांपल देखो कि दिया गया है, What I want should not be confused with total inactivity. Stop यहां पे आया है, ये लाइन यहां कंटिन्यू हो रही है ना। This is enjambment. An idea is expressed in consecutive lines. One line is not sufficient, right? And repetition, ourselves, खुद से, है ना, खुद को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ourselves, हम खुद, राइट, क्या सिग्निफाई कर रहा है? सेल्फ इंपॉर्टेंस दो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने आप को समझो, अपने अंदर झांक के देखो कि हम कहां जा रहे हैं, कहां खड़े हैं, क्या कोई लाइफ का पर्पस है या नहीं है, या बिना किसी पर्पस के हम बस भागे जा रहे हैं, राइट। देन देयर इज द लास्ट स्टैंजा, a short one. Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. खूबसूरत सा एक, है ना, एग्जांपल दिया, देखो, पृथ्वी, धरती से सीखो, राइट। यहां पे पर्सोनिफिकेशन है, मार्क कर लेना। पर्सोनिफिकेशन क्या है? अर्थ हमें सिखा रही है। सिखाता कौन है? इंसान, है ना। अर्थ सिखाते हुए बताई गई है, अर्थ यहां पे पर्सोनिफाई की गई है, ठीक है, पर्सोनिफाई। तो अर्थ को पर्सोनिफाई किया है। किसी ने पूछा था पर्सोनिफिकेशन क्या है? दिस इज पर्सोनिफिकेशन, राइट, दिस इज पर्सोनिफिकेशन। अर्थ को पर्सोनिफाई किया गया है। सो द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive. कई बार होता है सीजन चेंज होते हैं, कई बार होता है बीज बोए हुए होते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, लगता है सब खत्म, बीज, है ना, अंकुरित ही नहीं होगा, जर्मिनेट ही नहीं करेगा सीड, लेकिन अंदर ही अंदर पृथ्वी क्या करती है? उसे पोषण देती है, नरिश करती है, उसे न्यूट्रिशन देती है, और फिर वो धीरे 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 पौधे के रूप में, है ना, उस धरती का सीना फाड़ के बाहर आता है ना, उस परत को चीरता हुआ खूबसूरत सा एक छोटा सा पौधा, है ना, बाहर आता है। यानी कि बाहर से शांत दिखते हुए भी अंदर ही अंदर हम नए विचारों का सृजन कर सकते हैं, न्यू थॉट्स को हम पैदा कर सकते हैं, राइट। वी नीड टू generate new thoughts inside us. Stop doing all the external activities that are creating all the hustle and bustle in life and chaos in the entire world. Let us stop doing this, and inwardly let us start giving us time and that peace so that we can create new thoughts, we can generate, we can innovate new thoughts, new actions. और जब वो विचार इतने strong हो जाएं तो हम वापस उनको actions के रूप में बाहर ला सकते हैं। And later proves to be alive. Later proves to be alive कब? जब वो सीड बाहर आ जाता है धरती से। उसी तरह जब हमारे अंदर वो विचार वास्तव में अंकुरित हो जाएं तो उन्हें एक्शन के रूप में बाहर ले आओ। Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. Who is I? I is the poet himself. अब वो कहते हैं अब फिर से, अब मैं, पहले कहा था चलो हम सब मिलके 12 गिनते हैं, अब वो कह रहे हैं अब मैं 12 गिनूंगा। एंड नाउ इट इज योर टर्न टू पॉन्डर अपॉन व्हाट आई हैव अर्ज्ड,
टू पॉन्डर अपॉन व्हाट आई हैव सेड, है ना, सोचो, विचार करो और एग्जीक्यूट करो। जो शांत रहने के लिए मैंने अर्ज किया है, जो खामोश रह के अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके अपने आप को समझने, अपने आप को, है ना, बदलने, एक नए जीवन को, है ना, पनपने के लिए जो मैंने अर्ज किया है, जो मैंने, है ना, रिक्वेस्ट की है, उसको एग्जीक्यूट करो, क्रियान्वित करो। सो नाउ आई विल काउंट अप टू 12, यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। आप शांत होइए, रीडर्स को कह रहे हैं समझिए, शांत होइए, और मैं आपको अपने मेडिटेशन में खोने के लिए, आपको मेडिटेशन करने के लिए समय देता हूं, और मैं यहां से चला जाता हूं। आई विल नॉट इंटरफेयर। ठीक है, पोएट अब हमें, है ना, सेल्फ मेडिटेशन में लीन होने के लिए, उसमें डीपली, है ना, इमर्स होने के लिए कह रहे हैं, और हमें अकेला छोड़ के जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द literary devices. A beautiful last stanza giving us so much of thoughtful insight. Okay, तो देखो, सबसे पहले एंजाममेंट है, जो कि हम इस पोएम में देख चुके हैं कई बार। पूरी, है ना, सारे स्टैंजाज में हम देख सकते हैं अलग अलग, है ना, लाइंस में एक ही बात, एक ही थॉट को अलग अलग लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है। देन वी हैव पर्सोनिफिकेशन। फिर हमारी पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन एक, है ना, निर्जीव वस्तु या एक ऐसा सजीव प्राणी जो इंसान नहीं है, उसको इंसान के एट्रीब्यूट्स, इंसान की खूबियां उसको, है ना, दे देना, इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स उसको एट्रीब्यूट करना, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। दिस इज अर्थ कैन टीच अस, अर्थ इज पर्सोनिफाइड, राइट? पृथ्वी को पर्सोनिफाई किया गया है। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द वर्ड्स। एक्सोटिक, exotic का मतलब something which is, external, exciting and interesting because it is introduced from some other place or country, something which we have never experienced before. Okay, so हम example ले सकते हैं कि the food was so exotic, यानी वो खाना, वो फूड, है ना, अलग ही तरीके से प्रिपेयर किया गया था, और ऐसा खाना हमने कभी खाया ही नहीं था। आप किसी रिसोर्ट में गए, कहीं, है ना, हिल स्टेशन पे गए, कहीं, है ना, सी वेकेशन पे गए, और वहाँ आपने अलग ही, है ना, टेस्टी फूड, है ना, एंजॉय किया। सो यू कुड यूज दिस वर्ड इन सच अ मैनर। ठीक है, इस चीज के लिए ऐसे हम यूज कर सकते हैं, एक्सोटिक। देन वी हैव सर्वाइवर्स, जो बचे रहते हैं लोग। ठीक है, एक मिशैप में जो बच जाते हैं, राइट? तो उसके लिए हम यूज करते हैं सर्वाइवर, समथिंग और समवन दैट सर्वाइव्स और लिव्स ऑन, है ना, किसी एक विपरीत परिस्थिति के बावजूद जो जिंदा बचा रहे, राइट? सो द सर्वाइवर्स ऑफ द प्लेन क्रैश वर रेस्क्यूड। ठीक है, जो बच गए थे, है ना, जो बच गए थे प्लेन क्रैश में, उनको रेस्क्यू किया गया, उनकी जान बचाई गई, राइट? देन द नेक्स्ट वन इज इनएक्टिविटी। वेरी इजी, है ना, जब कोई एक्टिविटी ना हो, जब आइडल बैठे हो, लैक ऑफ एक्टिविटी और डोरमेंसी, डेड कह सकते हैं, तो उसके लिए इनएक्टिविटी, राइट? If you develop a habit of inactivity, your creativity will be dead. Okay, और लास्ट में थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब कोई एक ऐसी चीज जो होके ही रहेगी, है ना, जो हमें कंटिन्यूअसली वार्निंग दे रही है कि ऐसा होके ही रहेगा। किसी को धमकी देना, वार्निंग देना, किसी अनप्लेजेंट, है ना, कोई अनप्लेजेंट काम या चीज होने वाली है, उसके लिए धमकी देना, राइट? सो दैट इज थ्रेटनिंग। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द एक्सप्रेशंस फटाफट। नाउ वी विल काउंट अप टू 12। 12 का एक्सप्रेशन क्या बता रहा है हमें? ज़ोडिएक साइंस है, राइट? नंबर ऑफ आवर्स इन द क्लॉक, नंबर ऑफ मंथ्स in a year. So that is why counting up to 12, and that will give us time to start or get deep into the meditative state of mind. Okay, इसलिए now we will count up to 12. Let's not move our arms so much, यानी let's seize all the external actions, है ना, those actions that actually create
destruction in the world, that create hustle and bustle and chaos in the world, उन actions को बंद करो, right? So let's not move our arms so much. Then we have, it would be an exotic moment. अभी हमने देखा था exotic का मतलब कुछ नया, नायाब, खास, अलग, बाहरी, right? तो एक अलग moment होगा. Exotic moment क्यों होगा? That would be a moment that we would actually experience for the first time in life. और वो इतना blissful होगा, इतना आनंददायी होगा, इतना खुशी प्रदान करने वाला होगा कि हम सोच भी नहीं सकते. We would be pleasantly surprised. We would all be together in a sudden strangeness. हाँ, ये मोमेंट एक सडन स्ट्रेंजनेस वाला होगा. क्या सिग्निफिकेंस है सडन स्ट्रेंजनेस? बिकॉज सडनली हमारी लाइफ में एक अचानक से इतनी विचित्र घटना घट जाएगी, एक अजीब सी अलग सी घटना घट जाएगी. क्या अजीब घटना घटेगी? कि हम चुप हो गए, शांत हो गए, है ना. चारों तरफ खामोशी छा गई है पृथ्वी पे. कितना अलग सा मोमेंट होगा और हम सब एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे. वी वुड शेयर द कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ silence, right? The man gathering salt would look at his hurt hands. Man would stop all the actions and look at the consequences of his actions. है ना, देखेगा कि मेरे इन कर्मों की क्या मैं सजा भुगत रहा हूं. ठीक है, क्या मुझे देखना पड़ रहा है? मैं खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं, मैं खुद अपने आप को इग्नोर कर रहा हूं. तो ये जो इग्नोरेंस है, ये मैं, है ना, करेक्ट कर पाऊंगा, इस चीज को ऑब्जर्व कर पाऊंगा. Right? Green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. This is the irony of the poem. कि एक ऐसी विक्ट्री के पीछे भाग रहे हैं जिसको एंजॉय करने वाला कोई नहीं बचेगा. भाई हम सब, है ना, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, ईश्वर के, है ना, दरबार में चले जाएंगे. बचेगा कौन? कोई नहीं. किस काम की वो जीत? और ग्रीन वॉर्स, हम सिंबल देख रहे थे. ग्रीन वॉर्स क्या है? ग्रीन वॉर है एफॉरेस्टेशन. ठीक है, और जो हम पेड़ों की, है ना, कटाई कर, डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, फिर वॉर्स विद गैस यानी पोल्यूशन जो फैला रहे हैं. वॉर्स विद फायर, जो हम, है ना, आग की बर्बादी फैला रहे हैं ये आर्म्स एंड एमिनिशंस के थ्रू. ठीक है, तो जो ये डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, वो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम रोक देंगे. और अगर रोक देंगे तो पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा और हमारा भी. पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. ये शेड क्या है? प्रोटेक्शन, कॉमन म्यूचुअल प्रोटेक्शन. ठीक है, शेड सिंबल है प्रोटेक्शन का, सेफ गार्डिंग का. और एक दूसरे के भाई, भाई कौन है एक्चुअली? जिन्हें दुश्मन मान रहे थे उन्हें अब हम दोस्त मानेंगे. क्लीन क्लोथ्स, दैट इज चेंज इन थॉट्स. डिस्ट्रक्टिव थॉट्स से हम चेंज करके कंस्ट्रक्टिव थॉट्स पे आ जाएंगे. ओके, दिस इज द सिग्निफिकेंस. एंड आई वांट नॉट ट्रक विद डेथ, यानी कि मृत्यु से कोई आदान प्रदान नहीं करना चाहता, कुछ एक्सचेंज नहीं करना चाहता. जीवन ले लो और शांति दे दो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं. पोएट कहते हैं मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालना. मैं कंप्लीटली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मर जाओ और शांति मिल जाएगी. नो, व्हाट आई वांट टू मीन इज लाइफ शुड कीप मूविंग अहेड, but with a pause that could actually help us create new thoughts in our lives. Now, let's एक जगह कहीं गलती हो गई थी, right? Symbols, 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 symbols. Okay, done. Nothing. All right. Now let's look at the questions that we will come across in the question paper. Okay, कुछ questions हैं. Let's discuss them. The theme of the poem Keeping Quiet is the significance of happiness, the significance of silence, the significance of introspection and universal love and peace, and the significance of noiseless working environment. बड़े, है ना, देखो यहाँ पे हैप्पीनेस भी कह रहे हैं, हमें साइलेंस भी बताया जा रहा है, इंट्रोस्पेक्शन, यूनिवर्सल लव एंड पीस भी, और नॉइजलेस वर्किंग एनवायरनमेंट, सारे मिलते जुलते हैं. द मोस्ट परफेक्ट एंड एप्ट वन इज द थर्ड वन, सी. The significance of what is the theme? The theme is we need to understand the vitality, the significance of introspection, है ना, आत्मनिरीक्षण, एंड यूनिवर्सल लव एंड पीस के, है ना, सार्वभौमिक एक अगर शांति और भाईचारा
प्रेम अगर रहेगा तो उसका क्या महत्व है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें तब पता चलेगी जब हम साइलेंट होंगे, हम अपने हो हल्ले को बंद करेंगे, है ना, हम अपने आप को समझेंगे कि यार हम क्या हैं, क्या क्या थे, क्या हैं और कहाँ जा रहे हैं हम, राइट। हीडलेस जो हम मैड रश ये लगा रखा है हमने, है ना, ये रेस, उसको बंद करना पड़ेगा। Why does the poet emphasize on counting up to 12? Why does the poet emphasize this figure 12? They are the number of hours of the day, number of zodiac signs, months in a year, all of the above. We just recently discussed all of the above. ठीक है, ये नंबर ऑफ जोडियक साइंस भी है, नंबर ऑफ मंथ्स भी है, आवर्स ऑफ द डे भी है 12, इसीलिए शायद ये 12 वाला फिगर ले लिया। अगर यहाँ पे अगर हमारा सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम ही ऐसा होता कि ये अलग होते, ये मान लो 20, ये मान लो 30 होते, राइट, 30 मंथ्स, 30 जोडियक साइंस, 30 आवर्स, तो शायद पोएट 30 भी ले लेते। वी शुड काउंट अप टू 30। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the poet urges not to speak in any language. Very important question बनेगा, ध्यान रख लेना। Why does he ask us to keep mum? Why does he ask us not to speak in any language? Because language creates barriers. Everybody cannot speak all the languages. Some languages are very difficult to learn. Yeah, none of the above. So sensibly, right, हमें पहला ही आंसर टिक करना है कि लैंग्वेजेस क्या करती हैं, बैरियर्स क्रिएट करती हैं। इसीलिए बैरियर्स कैसे, हम एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मुझे इंग्लिश अगर नहीं आती है, हाउ विल आई बी एबल टू स्पीक टू एन इंग्लिश पर्सन, राइट, हु स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, तो उससे मैं कैसे बात करूं। मुझे अगर कन्नड़ नहीं आती है तो मैं, है ना, साउथ इंडिया में जाके, उस सिटी में जाके, कर्नाटका में जाके मैं कैसे बात करूं। तमिल नहीं आती है, चेन्नई में जाके उससे कैसे बात करूं। मुझे मीजो नहीं आती है, मैं मिजोरम में जाके उस आदमी से कैसे बात करूं। यूनिवर्सली बहुत सारी लैंग्वेजेस क्या कर रही हैं, बैरियर क्रिएट कर रही हैं। हम समानता को भूल गए हैं, इक्वालिटी को भूल गए हैं, हम एक दूसरे को अलग मानने लग गए हैं, राइट। एक इंसान अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानता है, दूसरा अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानता है। तो ये जो है ना बैलेंस मिसमैच हो रहा है, वो भाषा के कारण ही हो रहा है। He asks us to get rid of these barriers, to be on the same platform, to be called, you know, to be a part of that, ultimate cosmos, to be one. We need to stop speaking in any language, ठीक है, लैंग्वेज का बैरियर हटाना पड़ेगा। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, राइमिंग स्कीम क्या थी इसकी। राइमिंग स्कीम आप लोगों ने गौर की होगी, AABBCC है, ABCDEAB है, या फ्री वर्स है, या नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली फ्री वर्स है। इस पोएम की कोई भी पर्टिकुलर, है ना, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। हर लाइन अलग अलग एंड हो रही है। एक आध लाइन कोई एक जैसे मैच हो भी गई होगी, लेकिन दैट डज नॉट क्रिएट दैट राइमिंग स्कीम। वो रम क्रिएट नहीं होता है उससे। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज कीपिंग क्वाइट सो सिग्निफिकेंट। शांत रहना इतना जरूरी क्यों है यार। चुप रहने से क्या होगा, मम्मी खुश हो जाएंगी घर पे, है ना, ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलती है, तो वो एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। जोक्स अपार्ट, इट हेल्प्स अस जनरेट न्यू लैंग्वेजेस, इज दैट सो। चुप रहने से क्या नई लैंग्वेजेस हम जनरेट कर पाते हैं, है ना। इट हेल्प्स अस सेव एनर्जी, एनर्जी तो सेव होती है यार, बहुत एनर्जी सेव होती है। इट हेल्प्स अस इन सोल सर्चिंग एंड जनरेटिंग न्यू थॉट्स, नए विचारों का सृजन, और हम आत्मावलोकन, आत्मा को हम अपनी झकझोर सकते हैं, अपनी आत्मा को हम, है ना, अपनी आत्मा का निरीक्षण कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है, लेट्स सी। एंड नन ऑफ द अबव, सो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, है ना, कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं इनमें। वी कैन नॉट टिक दिस, लेट्स कंसिडर इट। It helps us in generating new languages? No. Now it helps us in saving energy? Okay, fine, है ना, बॉडी की एनर्जी सेव करने में। लेकिन सिग्निफिकेंस पूछा गया है, असली महत्व क्या है। इट हेल्प्स इन सोल सर्चिंग एंड जनरेटिंग न्यू थॉट्स। चुप रहेंगे तो बिना मतलब का दिमाग जो है इधर उधर नहीं घूमेगा, इधर उधर नहीं घूमेगा तो हम चित्त को एकाग्र कर सकेंगे, हम अपने मन को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। एंड व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट, व्हेन यू फोकस, यू एक्चुअली रीच अ कंक्लूजन, अ क्रिएटिव कंक्लूजन, which is what the poet is
earnestly urging us to do. Okay, तो हम शांत रह के क्या कर सकते हैं? सोल सर्चिंग, और उसके कारण हम न्यू थॉट्स को जन्म दे सकते हैं. Then the poet says that dash should not be confused with death. कौन सी ऐसी चीज है जिसको मृत्यु से कंपेयर नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको मृत्यु से कंफ्यूज कर ले. नो मूवमेंट, क्या नो मूवमेंट को हम डेथ मान ले? बीइंग साइलेंट, क्या चुप रहने को हम डेथ मानने की गलती कर दे? नो यूज ऑफ लैंग्वेज, क्या भाषा का उपयोग न करना मृत्यु समान है, उससे कंपेयर कर ले? या साइलेंस एंड इनएक्टिविटी, शांत रहना और गतिविधियों का, है ना, कम कर देना, गतिविधियां शांत कर देना और भाषा का, है ना, न प्रयोग करना, क्या ये डेथ से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी कंफ्यूज. किस चीज को डेथ से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए? सो वी सी दैट सिर्फ मूवमेंट के बारे में बात नहीं की है पोएट ने, सिर्फ साइलेंट रहने के लिए नहीं कहा है पोएट ने, सिर्फ भाषा को चुप, है ना, भाषा का प्रयोग न करने के लिए नहीं कहा है पोएट ने. पोएट कहते हैं हमें साइलेंस भी चाहिए और हमें इनएक्टिविटी भी चाहिए. हम बाहरी रूप से शांत हों, शारीरिक गतिविधियां भी शांत रखें, और फिर हम भाषा भी, है ना, बोलना एक बार बंद करें, जुबान चलाना बंद करें. कितने तीखे शब्द यूज करते हैं हम कई बार दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, राइट? ओके, सो प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस. ओके, सो प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस कैन, क्या होगा अगर हम साइलेंस और स्टिलनेस प्रैक्टिस करेंगे? तो क्योर द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, इंप्रूव लैंग्वेज, सेव ओनली एनिमल्स, इंप्रूव आवर वर्ड पावर. सबसे पहला ये फोर्थ वाला देखते हैं. क्या वर्ड पावर हमारी इंप्रूव हो जाती है जब हम चुप रहते हैं और स्टिल रहते हैं? नहीं यार, राइट? सेव ओनली एनिमल्स, क्या चुप रहने, इनएक्टिव होने से सिर्फ जानवर बचेंगे? जानवर भी बचेंगे, सिर्फ जानवर नहीं बचेंगे, है ना. लैंग्वेज इंप्रूव होगी, जब भाषा ही नहीं यूज कर रहे हैं तो लैंग्वेज कैसे इंप्रूव होगी? लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट, इट विल क्योर द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी ऑफ ऑल द वुंड्स, ऑफ ऑल द स्कार्स that we have given to them, right? धरती पे जितने हमने खरोंचे लगाई हैं, जितने घाव दिए हैं इस पृथ्वी को, इस एनवायरनमेंट को, इस नेचर को, इस एटमॉस्फेयर को, वो, है ना, वो हील हो जाएंगे. अभी कोरोना काल में जब पहला लॉकडाउन था तो आपने देखा होगा, खबरें आई थी कि, पढ़ा होगा, सुना होगा कि ओजोन लेयर हील हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ एक्टिविटीज, ये व्हीकल्स का मूवमेंट कम हो गया था, है ना. जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो बंद हो गई थी, तो कार्बन एमिशन जो है वो बहुत लेवल तक कम हो गया था. एनवायरनमेंट साफ होने लग गया था, पोल्यूशन, है ना, ऑल टाइम लो पे आ गया था. तो बहुत सारी चीजें हो गई थी. वी कैन दिस वे क्रिएट अ क्योर, राइट, अ रेमेडी फॉर द aching and for the, you know, for the crying, wailing environment and human society. What creates a sadness in our lives? किस चीज के कारण हमारी जिंदगी में ये जो इतनी तकलीफ है, ये जो इतनी पीड़ा है, किस वजह से आ गई है हमारी जिंदगी में? ऐसा हमने क्या कर दिया है, किन चीजों की वजह से हमारी जिंदगी में, है ना, ये दुख दर्द पैदा हो जाता है, ये तकलीफें पैदा हो जाती हैं? इज इट वायलेंस एंड फाइट्स, right? Is it lack of money? Is it death of whales? Or is it non-comprehension of thoughts and dread of death? Alliteration है, dread of death, right? D और D अच्छा ऑप्शन लग रहा है, देखते हैं. तो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हमारे मन में ठेस पहुंच रही है, तकलीफ हो रही है? अल्टीमेटली क्या वो चीज है? क्या हम एक दूसरे से जो हिंसा कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं उसकी वजह से सिर्फ, या हम अपने विचारों को ही नहीं समझ पा रहे हैं और मृत्यु का डर, भय हम सताया जा रहा है? क्या पैसे की कमी के कारण सिर्फ जिंदगी में दुख है? या क्या कहीं किसी समुद्र में वेलों को, है ना, इलीगली मारा जा रहा है, उसकी वजह से डेथ, है ना, उसकी वजह से हमारे दिन में, हमारे मन में तकलीफ है? ये तो झूठी बात है जनाब साहब, ये झूठी चीज है ना. वेल्स को मारते हुए देख के हम टीवी पे देख के जरूर, है ना, मलाल कर रहे होते हैं, ओ हो क्यों मारा, है ना, लेकिन वास्तव में तो लोग वहां जाके मार रहे होते हैं, एक्शन तो हम कुछ लेते नहीं है. तो ये तो, है ना, बिल्कुल बेईमानी है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. लैक ऑफ मनी, क्या सिर्फ पैसे की कमी की वजह से हमें, हमारे मन में तकलीफ होती है? क्या सिर्फ पैसे की कमी की वजह से हमारे मन में तकलीफ होती है? अगर सिर्फ पैसे की कमी की वजह से तकलीफ होती तो जो सुपर रिच लोग हैं वो अपनी लाइफ से इतना क्यों परेशान है? इज इट वायलेंस एंड फाइट्स ओनली? नो. What is the ultimate answer? The ultimate answer is
नॉन कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन यानी समझना, अंडरस्टैंड, ठीक है, नॉन कॉम्प्रिहेंशन, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड थॉट्स एंड द ड्रेड यानी फियर ऑफ डेथ। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइफ है ना हमेशा दुखी हो गई है हमारी, है ना, हम सैड रहने लग गए हैं, राइट। नेक्स्ट इज द अर्थ कैन टीच अस, पर्सोनिफिकेशन है, अर्थ हमें सिखा सकती है, पृथ्वी है ना, लाइफ बहुत, पृथ्वी जो है बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ी टीचर है ना, एक गुरु के समान है, बहुत सारी चीजें सिखाती है। प्रकृति क्या कुछ नहीं सिखाती है, धरती माता क्या कुछ नहीं सिखाती हमें पेशेंस रखना सिखाती हैं, राइट, हमें माफ कर देना सिखाती हैं, कितनी तकलीफें दी हैं हमने, लेकिन फिर भी हमें माफ कर देती है ना, पृथ्वी माफ कर देती है। कभी ऐसा थोड़ी है कि उठा के झटका देती है और कहती है हटो सारे। अब ये घटनाएं जरूर होने लगी हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक्स वगैरह, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह है ना, सुनामी वगैरह बहुत सारी आने लग गई हैं। तो धरती कहीं ना कहीं तो अपना बदला लेती है, ठीक है, सबक सिखाती है, लेकिन एवरी नाउ एंड देन नहीं, राइट। सो द अर्थ इज अ बिग टीचर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचर। क्या सिखाती है, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन या एक्सटर्नल साइलेंस विद जनरेशन ऑफ न्यू थॉट्स इंटरनली, राइट। एफोरेस्टेशन सिखाती है, हाँ बिल्कुल सिखा सकती है कि एफोरेस्टेशन करो, है ना, पौधे लगाओ और प्रकृति को खुशहाल बनाओ। डिफोरेस्टेशन सिखाती है ना, लेकिन क्या यहाँ पे एफोरेस्टेशन के बारे में कुछ खास सिग्निफिकेंट बताया गया है, नहीं, इतना भी सिग्निफिकेंट। सॉइल कंजर्वेशन सिखाती तो है, लेकिन क्या सॉइल कंजर्वेशन ही सिखाया है यहाँ हमको पृथ्वी ने इस पोएम में, नहीं। पृथ्वी से हम क्या सीख सकते हैं, दैट एक्सटर्नल साइलेंस should take place, we should practice external silence and be able to generate new thoughts within our soul, within within the depths of our heart. So this is the most appropriate answer, right? तो हम क्या सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि एक्सटर्नली हमें चुप रह के ये हो हल्ला, ये भी अपने वश में कर लूं, वो भी अपने काबू में कर लूं, ये छोड़ के हमें एक बार के लिए नए विचारों को जन्म देने का समय अपने आप को देना चाहिए। एंड आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन टोटल इनएक्टिविटी। अभी किया था हमने लास्ट में टोटल इनएक्टिविटी, राइट। ट ट ट ट क्या होता है, ये एक ही कॉन्सोनेंट साउंड जब बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना, बार बार जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड जब बार बार रिपीट होता है तो कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है उसे हम कहते हैं क्या, कॉन्सोनेंट्स, राइट, उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। एनाफोरा, इज इट एनाफोरा, इट इज नॉट एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है ना, सेंटेंस के, है ना, लाइनों के शुरुआत में कोई एक वर्ड बार बार रिपीट किया जा रहा है, पहली दो लाइनों में भी हो सकता है, दूसरी तीसरी में भी हो सकता है, तीसरी चौथी में भी हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं एनाफोरा, राइट, रिपीटिशन है। असोनेंस ना यार, असोनेंस यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन प्रिडोमिनेंट क्या है, डोमिनेट कौन कर रहा है, ये टी साउंड डोमिनेट कर रहा है, ये टी साउंड डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। इज इट कॉन्सोनेंस, यस इट इज कॉन्सोनेंस। नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। कॉन्सोनेंट जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार, साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, एंड दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंस है, राइट। विद दैट वी कम टू एन एंड of this topic also। basically है ना, क्या क्या हमने इसमें सीखा, क्या हमने इसमें देखा, हमने देखा कि एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहां हम सब एक हो सकें, हम उस सेम प्लेटफॉर्म को शेयर कर सकें, even if not physically, at least emotionally, at least mentally, at least in our thoughts। प्रैक्टिकली हम सबको थोड़ा शांत होना पड़ेगा। हम इतना हो हल्ला क्रिएट कर चुके हैं, वी हैव क्रिएटेड अ रकस ऑन दिस अर्थ, वी हैव क्रिएटेड सो मच ऑफ chaos on this earth, we have given so much of wounds, so many wounds to this earth that it needs time to heal। we have made ourselves suffer so much, right। हम अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं, we are making other human beings suffer so much, right। हम इन चीजों को हमें रोकना पड़ेगा।
है ना, हमें इन चीजों को रोकना पड़ेगा और फिर यूनिवर्सल पीस और ब्रदरहुड फैलाना पड़ेगा, हमें डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा, है ना, जो प्रकृति के खिलाफ वॉर है उसे रोकना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पृथ्वी से सीखना पड़ेगा कि किस तरह ऊपरी शांति होने के बावजूद, है ना, अंदर अंदरूनी वो जो विचारों का सृजन है वो चालू रखना चाहिए, वो हमेशा होते रहना चाहिए। अगर हम बाहर से हो अल्लाह करना बंद करेंगे, मन शांत होगा, तो हम नए विचारों को, है ना, जनरेट कर पाएंगे। हम ये सोच पाएंगे कि हमने अब तक क्या हासिल किया है, हम कहाँ खड़े हैं, है ना, जिंदगी का जो मकसद था, है ना, ऊपर वाले ने जिस मकसद के लिए भेजा है, क्या वो हम हासिल कर पाए हैं, और उसके बाद हम आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। अगर नहीं हासिल कर पाए वो, तो क्या हम फ्यूचर में अपने आप को बदल के, है ना, एक नए जीवन का प्रारूप बना सकते हैं, क्या नए जीवन को हम शुरू कर सकते हैं। इट इज नेवर टू लेट, सो वी शुड स्टार्ट मेडिटेटिंग, राइट। ये नहीं घंटों मेडिटेशन में बैठ गए, नो, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, बी इनएक्टिव, right, and take a deep plunge inside your heart and your soul and see where you have put on blots, where have you made it dirty, and clean it. Okay, clean it and come out fresh, come out a new personality and a set of new thoughts. And this is how we can create a beautiful world where every single living being can spend their life with dignity and peace and harmony. All right, so we sign off with this. Go through the poem. If you have any questions, we can take them in the next session. Okay, तो अगला जो सेशन होगा वो उसमें हम विल ट्राई के प्रोज हम लें, एक स्टोरी लें। लेट्स सी हम नेक्स्ट सेशन जो है उसमें क्या लेते हैं, वो नेक्स्ट सेक्शन में एक सरप्राइज रहेगा, राइट। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।